सो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें एवरी टर्म तुम लोग पहले से सुन चुके हो. ओके, वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन, व्हाटएवर. But the term work is, remember, it is different from whatever we know in our daily life. डेली लाइफ में वर्क करना और फिजिक्स का वर्क, ये दोनों अलग बातें हैं. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें. ओके, डेली लाइफ में जो वर्क होता है उसका मतलब होता है इफ यू स्पेंड सम ऑफ योर एनर्जी, then it means you are doing some work. But in physics, it sends something else. So in physics, what is work? In physics, work done are by two things. First type is called work done by a constant force. Okay, if the force is not variable, a fixed amount of force is applied, and on the body the force applied, the body is displaced by some amount, then we said the work is done. Suppose करो ये एक ब्लॉक है और मैंने इसके ऊपर ये फोर्स लगाया in this direction, here. फोर्स का डायरेक्शन इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, तो इसका जो वर्क डन होगा W, दैट इज इक्वल टू F डॉट S. इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर इट इज F डॉट S. कैन एनीवन आंसर मी व्हाई हम लोग यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं? एनीवन? सर क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता. डायरेक्शन नहीं होता इसलिए डॉट नहीं करते. डॉट करते हैं इसलिए डायरेक्शन नहीं होता. एनीवन एल्स? सर जब वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका प्रोडक्ट स्केलर होता है. ये सब तुम लोग जो बोल रहे हो ये आउटकम है. वेरी गुड, बट दिस इज आउटकम बट नॉट एग्जैक्ट आंसर. लुक हियर, अगर ये फोर्स है F और इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है थीटा, तो F का कौन सा कंपोनेंट होगा S के डायरेक्शन में? दैट इज F cos theta, isn't it? Yes sir. So work Yes, is sir. produced, this work is done not because of F sin theta but because of F cos theta. So we can say that it is nothing but F cos theta into the displacement S. So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Fs cos theta. Now it is nothing but Yes sir. the expression for dot product. So it is F dot S. Okay, and remember dot product is a scalar, that is why work is also a scalar quantity. Sometime it is asked that product of two vector is a scalar. Which physical quantity is a scalar quantity which is a product of two vector quantities? Answer is your work. Okay, so it is a scalar quantity. Now suppose if number of forces are applied instead of only one force, if number of forces are applied, एक special case यहाँ पे देखो, if number of constant forces are applied, suppose यहाँ पर एक की जगह तीन फोर्स अप्लाई हो रहा था, F1, F2, sorry, just try this. Yeah, F3, or suppose up to Fn, n number of forces are applied on a body. ठीक है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर n number of forces अप्लाई हो रहा है. ठीक है, in the same direction, in the same direction, not in the different direction, in the same direction. This is net force, and it produces a displacement from here to here. Suppose this is S. Then what is the expression for work here? Anyone? Sir, we will take mean of all the forces and dot product it with S. Mean of the forces? No, we not Yes, take sir. mean of the forces. We take the net force. We take the net value of the force and then dot with displacement. This net force is nothing but vector sum of forces.
So it is nothing but f1 vector plus f2 vector and so on. Is it okay? Not mean value. Mean का मतलब अलग हो जाता है. Up to this, I think everyone okay with it? Yes, sir. Yes, sir. Next is your unit and dimensions of work. So, and can anyone answer me what is the dimension of work? Ahili, dimension of work. Sir, can I tell? No, let her answer. The dimension of Work. the Yes. unit of work that is therefore the dimension for formula I'm telling. I don't know the answer, the definition. Dimension is very easy. Look, if you know formula, then you able to derive the dimension. मैं वही कर रहा हूँ यहाँ. If you know it is nothing but force into displacement. Force means mass into acceleration. Displacement means length. Again, mass means m, mass. Acceleration means what? Your velocity divided by time. Okay. So velocity means what? Displacement by time. So it is nothing but length by time again. And एक time already यहाँ available है. So it is t square. Is it okay? So its answer will be what? m1, L2 and t minus 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So this expression is also equivalent to which one? इसका dimension किसके साथ match करता है? किसी को पता है? किसका dimension था ऐसा? Dimension of torque, if you remember, last class अभी complete किए थे हम लोग. Yes, sir. Yes, Dimension sir. of torque Yes, is sir. also Torque same as dimension that of same your as. work. Okay, this is very important. And now its SI unit. Let's come to the units. Now its SI unit is how much? अनंत, इसका SI unit क्या होगा? So kg meter square per second square. सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ना साधारण भाषा में, फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है. फोर्स Newton का meter. न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर बोल सकते हैं. अब तुम अगर हाँ न्यूटन को अगर और डिराइव करोगे तो न्यूटन का क्या हो जाता है? मास का केजी हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ओके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ठीक लिखा है या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर? Yes, sir. Yes. ये हुआ. ओके, और इसी चीज को क्या कहा जाता है? यस, दिस इज कॉल्ड Torque. Torque. joule. This is called joule. Joule. Remember, so 1 joule is equal to 1 Newton into meter. 1 Newton into 1 meter. Is it okay? Is it okay, everyone? Second one is it CGS unit. CGS unit वर्क का क्या होगा? Anyone? Just like in SI unit, it is Newton into meter. So CGS में वर्क का क्या यूनिट होता था? Sir, dyne into centimeter. Yes, it is dyne into centimeter. Very good. And this is dyne centimeter is called erg. याद रहेगा? Erg कहते हैं. तो 1 erg Yes, sir. is equal to 1 dyne into 1 centimeter. Now it is your task, just fast सबको ये भी calculate करो relation between joule and erg. फटाफट बताओ मुझे. Relation between joule and erg. 1 joule is equal to how many erg? Calculate करना जरा.
So 1.013 into 10 to the power 7. Okay, 1.013 क्या क्यों आया? So 10 to the power 7. 10 to the power 7 सिंपली यस बोल सर 10 सकते टू थे. पावर 7 होगा तो. हाँ, 1.03 क्यों आया अनंत? सर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हो 1.013 कुछ वैल्यू ओके, आता है. 1.013 इज अप्रोक्सीमेट. उसको नहीं भी लोगे तो चलेगा. ओके, वो क्यों आता है उसको पता होना चाहिए तुमको. एक्चुअली वहां पे अगर g का वैल्यू तुम लोग 9.81 ले रहे हो या फिर 10 ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ डाइन एंड अर्ग इज रिलेशन इज व्हाट? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर हाउ मेनी डाइन? 10 to the power 5 dyne, right? 6 5 No, 10 to the power 5. Okay, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, and 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeter. Okay, so if you substitute this value, 1 Newton is equal to, just here, 10 to the power 5 dyne, and 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeter, then just calculate, it is nothing but 10 to the power 7 dyne centimeter, which is nothing but erg. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Is it okay? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यूनिट कन्वर्शन काफी इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के लिए यूनिट कन्वर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सो अभी जो हमने यूनिट पढ़ा, दिस आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट यूनिट्स. दिस आर कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स. ओके, सो यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट अभी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. दैट Sir. एब्सोल्यूट यूनिट, यस यस दीपक. सर वो जो आप बोल रहे थे ना कि उसमें 1.13 जो आता है उसको एक बार दिखाएंगे क्या? ओके, मैं कर लूँ ये क्लास. ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, डोंट वरी. वो रीजन ये है जस्ट ग्राम में कन्वर्ट करने का. Okay. न्यूटन से, न्यूटन जो वर्ड आ रहा है ना, वो केजी, ये जो केजी आ रहा है, यहाँ पे अभी तुम्हें समझ में आएगा क्यों आ रहा था. यहाँ ही देख लोगे, नो प्रॉब्लम. सो देखो, जूल एब्सोल्यूट यूनिट है, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, और सीजीएस में डाइन है, ऑलरेडी कवर कर लिया, और 1 जूल और अर्ग में रिलेशन कवर कर लिया. इसका दूसरा यूनिट जो होता है, बहुत सारे यूनिट होते हैं, ठीक है. दूसरा टाइप ऑफ यूनिट जो है वो ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? सपोज करो कि तुमने 1 केजी वेट को रखा है तुमने, और ये 1 केजी वेट ड्यू टू ग्रेविटी जी डिस्प्लेस कर जा रहा है डिस्टेंस 1 मीटर. ठीक है, तो इसमें कितना वर्क डन किया? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? यस सर. यहाँ देखो, Yes, मैंने sir. वेक्टर नहीं लिखा है. डोंट थिंक इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. आई जस्ट राइट दैट दे आर मल्टीपल्स. ओके, सो यहाँ जो फोर्स हो रहा है, ये फोर्स किसके वजह से हो रहा है? दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द gravity. वेट. ओके, सो दिस इज 1 kg weight. So this is nothing but 1 Yes, kg sir. weight is acting downward. So force is 1 kg weight which is acting downward, and displacement is 1 meter. Now 1 kg weight को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे? So that is equal to 9.81 न्यूटन होता है. 1 kg weight is equal to 9.81 Yes, sir. न्यूटन into 1 meter. So this is equal to your 9.81 joule. So this 9.81 joule is called 1 kg meter. This kg meter is called your gravitational unit. So gravitational unit is kg meter. Sometime it is asked in examination, what is the relation between kg meter and joule? So your answer is 1 kg meter is equal to 9.81 joule. Is it okay, everyone? So can you calculate the relation between 1 kg meter and erg? What is the relation between 1 kg meter and erg? Anyone?
यस, ये बच्चों वाली बात है, फटाफट बताओ। सर 1/100. क्यों, ये दिख रहा है यहाँ पे, चीटिंग करो। यहाँ पे दिख रहा है 9.8 जूल। जूल की जगह अर्ग अगर बैठाओगे तो क्या करोगे? जूल की जगह अगर अर्ग बैठाओगे तो क्या करोगे? 10⁻7 कर दोगे ना? Yes, sir. It's all. So 9.81 into 10⁻7 अर्ग. What is the problem? जूल के जगह जस्ट अर्ग बिठा देना है, इस जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दो, हो गया काम। नाउ CGS unit of the gravitational part is called gram centimeter. So it is similar, 1 gram weight into 1 centimeter. And gram weight को अगर तुम लोग इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है 981 डाइम, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। So that is equal to 981 अर्ग। ये भी याद रखना होगा रिलेशन। Is it okay? Can anyone have Yes, doubt? sir. Ahili, is it clear? Yes, sir. Okay. Next unit is called your, which is by far mostly used in your modern physics, is called the electronic or electron volt unit. ऐसे लिखा रहता है। अब सबने देखा होगा, मैंने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर करवाया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे इसमें। Yes, sir. याद है? EV. जूल और ईवी Yes, में sir. रिलेशन मैंने बताया था। सो ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. सो मैं तुम लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, सर्च करके मुझे नेक्स्ट क्लास याद दिलाना और बताना भी कि डेफिनेशन ऑफ 1 EV कैसे बोलोगे। डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई अगर अभी बताना चाहे सर तो एक बता सकते। इलेक्ट्रॉन के पास कितना वोल्ट है? नो नो नो, साइंस इज नॉट अबाउट द लिटरल मीनिंग्स। If anyone want to answer now, it's okay. Otherwise, go ahead and search for it. Okay, so this is called electron volt, and this is the relation. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So conversion बहुत ज्यादा आता है इसमें से, EV to joule में conversion. ओके जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डील करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में डील करेंगे, तो हम लोग ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को लेके काम में करते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्क डन or nature of work done. So nature of work done are of 3 types. There are 3 types of work done out there. One is called positive work done, another is called negative work done, and zero work done. ठीक है? अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या होगा, इससे पहले मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ कि इधर वापस एक बार हम लोग वर्क के सर डेफिनेशन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में सर नहीं, एक बार हम लोग वापस यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पर W is equal to F dot ds और W is equal to F value of magnitude of F magnitude of S into cos theta. So not like the daily life work, physical work means it has a magnitude of force, magnitude of displacement, and the angle between the displacement and force theta. So ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क डन जो है वो इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा कब नेगेटिव होता है अनंत? कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होता है? स्टार्टिंग विद 0 टू 360 डिग्री कब नेगेटिव होता है कॉस थीटा? सर कैन आई टेल? लेट हिम आंसर।
So 180 degree. सिर्फ 180 डिग्री पे। नेगेटिव कब होता है? 0 to 19, 0 to 90. Ahili, cos theta is positive or negative? So positive. Positive. 90 to 180, positive or negative? क्या हो गया है? बोलो दीपक। सर π/2 to 3π/2. मैंने सिखाया था तुम लोग को ग्राफिकल मेथड, भूल जाते हो सर लोग। 180 डिग्री से पूरा ये ग्राफ 180 याद डिग्री रखने से से ही आगे तो हो पूरा गया। 270 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया इसका, तो ये 2 पाई हो जाएगा, Yes, मतलब 360 हो जाएगा। इसका हाफ यहाँ है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो 0 से 90 तक पॉजिटिव है, 90 to 180 नेगेटिव है। 0 to 90 डिग्री को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल? obtuse. ऑब्ट्यूस। Obtuse. 0 to 90 is called acute or obtuse? सर जी acute. acute कहते हैं, इतना कैसे गलत कर रहे हो लोग? ठीक है, और 90 to 180 is called obtuse angle. So obtuse. whenever it is acute angle, or better to say 0 to 90 degree, theta is between 0 to 90 degree, then cos theta is positive. And when theta is from 90 to 180 degree, और बेटर टू से यहां तक रहता है बट हम लोग 180 तक ही काउंट करेंगे, then cos theta is negative. So depending on this two, we can answer that our work is positive or negative. And cos theta 0 कब हो रहा है? Cos theta is equal to 0 when theta is equal to 90 degree. and 270 degree. So exactly, बस ये ग्राफ अगर cos theta का वैल्यू पता है तो हम लोग इस तीनों को इजीली आंसर कर दें। सो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब हमारा थीटा जो है, सॉरी cos थीटा जो है, Positive होगा. cos थीटा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वर्क तब होगा जब हमारा cos थीटा नेगेटिव होगा। और जीरो वर्क के लिए अलग कंडीशन, वो हम लोग बाद में आ रहे हैं। इसका 3 कंडीशन आता है। एक कंडीशन ऑब्वियसली ये है when cos theta is 0. 0. This is one of the condition. Another conditions are also possible. So what is positive work done? Positive work means that force or its component is parallel to the displacement. That is, theta is lie between 0 degree to 90 degree. Okay. So in this condition, what happened? In this condition, work is equal to Fs cos theta. Since cos theta is positive, therefore work done is positive. Is it okay? Now इसका एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। आहिली, you have to answer this. Suppose एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ खड़ा है। उसने क्या किया? ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। यहाँ एक पुली लगा हुआ है, इस पुली से इस रोप को बांध दिया गया है। इसका और एक एंड है, वो इसके हाथ में। इज इट ओके? नाउ he applies a force F. He applies a force F in the upward direction, obviously. ये टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, and so that the body is moving upward with a displacement of S. Is this work is a positive work or negative work? Confused? Positive. Okay, you are confused, I think so. Yes or no? Yes, sir. Okay.
So let me Sir, can I try? ask you a simple question. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर देते हैं. अब ये पुली वुली हटाओ. ये पर्सन है, इसने सीधे अपने हाथों से इसको पकड़ा और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया, और इसने जो फोर्स अप्लाई किया वो है F, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे काम कर रहा है सपोज करो दैट इज Fg. डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर हुआ, बॉडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. सो मेरा क्वेश्चन है वर्क, पहला मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू applied force F is positive work or negative work? Ahili. तो वो ऊपर की तरफ उठा रहा है ना तो उनको. हाँ बिल्कुल. आई थिंक नेगेटिव. Okay, you are still confused. Yes, Deepak, it is positive work or negative work? Sir, it's positive. Positive. Anand, positive work or negative work? So positive work. It is positive work. Simple. देखो आइली, ये फोर्स ऊपर जा रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ. सो दोनों के बीच का डायरेक्शन के एंगल का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना. थीटा इज 0. सो 0 मीन्स दिस W इज पॉजिटिव. सिंपली ऐसे ही याद रखो. तो ये पॉजिटिव वर्क आएगा. ना इसी यहाँ पर तो क्वेश्चन जीरो को, वर्क होगा ना? नहीं यहाँ जीरो वर्क नहीं होगा. इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि वर्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक लग रहा है ना नीचे अपने आप इसका वेट के वजह से. तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स अगर मैं पूछूं कि ये वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Sir, negative. Then it is, yes, then it is negative obviously. The reason is कि फोर्स नीचे काम कर रहा है Fg और मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है. सो इट इज 180 डिग्री. So 180 degree cos 180 degree is -1. So this work is negative. Is it okay? I hope now it is clear what is positive and negative work. I give you here some example. ये already suppose ये person है, इसने weight को lift किया ऊपर की तरफ. ठीक है, जैसे ही इसने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, इसने फोर्स ऊपर अप्लाई किया और ये वेट भी ऊपर गया. सो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, है ना. ये जो मशीन होता है घास को काटने वाला, अगर मैंने इसको पीछे की तरफ पुश किया और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्यूट इन नेचर, 90 से कम है. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्क. स्प्रिंग में मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया और स्प्रिंग इधर डिस्प्लेस हो गया. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्क. Here some another examples of negative work. क्या हुआ यहाँ पे? अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया लेकिन इसका वेट जो है वो नीचे काम कर रहा था. So this is with respect to your gravitational force. This is a negative work. Is it okay? Again, suppose करो मैंने इस पे फोर्स इधर अप्लाई किया और ये इधर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करता है? स्मॉल एफ. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, राइट? सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? So negative. Yes, this is negative work with respect to this frictional force. I hope now it is clear. Suppose a positive charge is there and another positive charge is trying to close to this one. So इसमें जो फील्ड है ये इसको अपोज कर रहा है, मतलब इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है कि मुझसे दूर भागो, लेकिन ये जबरदस्ती Yes, इसके ये पास negative हो लेके आ जाएगा. रहे हैं हम लोग. सो ये भी नेगेटिव वर्क हो जाएगा. और अगर सपोज करो एक नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास लेके हम लोग जाएं, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क? Sir, positive. इज पॉजिटिव वर्क बिकॉज ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को. यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो अट्रैक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क इज पॉजिटिव वर्क. एंड इफ दे आर बोथ आर नेगेटिव, सो दे रिपेल ईच अदर, राइट? इनका फोर्स जो Yes, होगा and it's again वो negative work. रिपल्सन होगा.
और मैं डिस्प्लेसमेंट इधर करना चाह रहा हूँ, सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दिस वर्क इज नेगेटिव. इज इट ओके? Sir, या sir, negative और positive work में difference? जस्ट डायरेक्शन का सेंस है और कुछ नहीं. Okay, sir. सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैं जिधर फोर्स अप्लाई किया उधर ही डिस्प्लेसमेंट Okay, हुआ या नहीं, बस ये डायरेक्शन का सेंस है और कुछ भी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा जीरो वर्क डन. इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ से मत सोचो. मान लो एक कुली है, ये है कुली, इसने सारा दिन एक बहुत वेटेड बॉडी को अपने सर के ऊपर बिठा के और इधर की तरफ चल रहा है. ठीक है, प्लेटफॉर्म पे. अब ये जो बॉडी है, इसका फोर्स, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी इस कुली के ऊपर? sir अपने हाथ का. नहीं नहीं, बॉडी जो है, ये बक्सा जो है, ये इसके सर के ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, जिसकी वजह से इसको उठा के रखा है. सो दैट इज विच फोर्स? Sir, weight. यस, इट इज नथिंग बट द वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये डिस्प्लेस कर रहा है किधर? ये इधर घूम जा रहा है, तो बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रहा है. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स जी. Yes, sir. एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? 90 degree. So 90 degree. So if you calculate the work, it is nothing but Fs Sir, cos cos 90 theta. is 0. So this will be Fgs cos 90 degree, and cos 90 is 0, so work value is 0. So फिजिक्स के भाषा में बेचारा कुली सारा दिन काम करता है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में इज डूइंग जीरो वर्क. ओके, so if the angle between the force and the displacement is 90 degree or perpendicular, then there is no work done. कोई और एक एग्जांपल बता पाएगा मुझे? Anyone? Yes? You are holding your bag. तुम लोग अपने बैग को पीठ पे रखते हो सारा दिन, भारी बस्ता Yes, sir. स्कूल का, और ट्रेवल करते रहो इधर से Sir. उधर. इट इज ऑल्सो नो Sir, वर्क. यस, sir, अगर एक फ्रूट जो है पेड़ में लगा रहता है तब भी तो नो वर्क होता है. फ्रूट पैर में, Fruit. Yes, sir. वहां डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है वहां? ओके, दूसरा टाइप ऑफ नो वर्क डन क्या होता है? जब आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे एक बहुत बड़ा सा स्टोन है, बहुत ज्यादा मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये मूव भी नहीं हुआ, हिला भी नहीं, तो प्रैक्टिकली आपने अपना एनर्जी तो खर्च कर दिया, लेकिन ये बॉडी मूव ही नहीं हुआ. सो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. हियर थीटा इज समथिंग, बट ड्यू टू एस इज इक्वल टू 0, the whole work is equal to 0. Is Yes, it okay? sir. And the last one is if there is no force acting. Suppose करो ये ब्लॉक रखा Yes, हुआ है, sir. हेवी ब्लॉक, और तुम बस यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि हे भगवान इसको यहाँ से उठा लो, ठीक है, इसको मूव कर दो यहाँ से. तुम खुद फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो. सो एट दैट कंडीशन वर्क इज ऑल्सो 0 as force is equal to 0. Is it okay, everyone? Any question? No, sir. Okay, then I have some question. Okay, Ahili, when a car is moving with a uniform speed, whether the engine is doing any work or not. My question is clear to you? ये कार है, ये अपने यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहा है. इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? द वर्क डन बाय इंजन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0.
Come on. Anyone else? So the work done is Sir, 0. zero. Work done is 0. Sir, Yes, zero. sir. 0. सब कोई 0 बोल रहा है. No, Yes. work done is not 0. ये गाड़ी बिना फ्रिक्शन का चल रहा है क्या? फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है रोड के ऊपर. इंजन Yes, को sir. सपोज करो, इंजन क्या है, मान लो कुछ लोग धक्का दे रहे हैं इसको, दैट इज द वर्क ऑफ इंजन. इंजन क्या कर रहा है, जैसे लोग धक्का देते हैं इसको, वैसे इंजन भी इसको धक्का दे रहा है आगे ले जाने के लिए, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा है. सो फ्रिक्शन ऑलवेज यहां पर है. सो एज द फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट, सो वर्क इज डन. And that work done is negative work done. Okay, with respect to friction. Is it okay? Now last question, we have just 1 minute. अगर मान लो ये कार पोजीशन 1 ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के वापस पोजीशन ए पे चला है, सो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? Sir, zero. नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. अभी क्या वर्क डन होगा? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Work नहीं होगा. Yes, okay. So this is not a work done because of this net displacement is 0. But individual, if you say, it is continuous work done. Okay, I'll send you another link to join. Stop here. Sir, Yes.